women are causing more domestic violence than men. Females में एक चीज मैंने देखी, patience level बहुत कम हो चुका है. There is zero patience. You are not able to tolerate. आप कुछ चीजें digest नहीं कर पा रहे हो. आज एक बंदे की कोर्ट मैरिज होता है, दूसरे दिन वो प्रोटेक्शन लेता है, 5-8 हफ्ते या 2 महीने बाद यही केस कोर्ट में आता है डिवोर्स के लिए. डिवोर्स रेट्स की बात करें, आज वुमेन इस चीज को एक लग्जरी की तरह लेके चलती है. Unfortunately, very unfortunate, I have seen very closely in cases. The way you're raising your daughters, please raise your sons like that. Yeah. Yes. That is true. हर टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि आना तो वुचुन कहाँ आलिम नफर तम से करो अमिस कोर खानदर, ये समझे अमिस क्यों आलिम होना जरूरी है. एक माँ अपने बच्चे को वैसा शेप नहीं कर सकती. Why always a man is on back part की बस हैक न पाने वाइफ खतर कथ करती. दिस इज कश्मीर लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि. उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश ही होंगे. नाजरीन, आज हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, she wears a black coat every day and runs a women-led law firm and is someone who believes that law and business work best when done right. She is courageous, she is love, she means determination, and she is business. We have with us today Ruqayya Siddiqui. Ruqayya ji, कैसी हैं आप? I'm absolutely fine. Well, let me tell you something. You're not wearing a black coat today, but this lovely white coat suits you so well. I did not wear black coat because weather did not allow me to be chilling. Yeah. So that's why I'm wearing this white coat. This is really well. I like it. Thank you so much. You give me polar bear vibes. Okay. So, रुकैया जी, अपने बारे में कुछ बताएं. आप कहाँ से कश्मीर में? और तालीम यहीं से हासिल हुई? तालीम तो यहीं से हासिल हो गई. Since my childhood, मैं एक पहली तो मेरा जो रूट है वो डाउनटाउन से है. अच्छा ठीक. Lovely. Being a downtown girl. So you're bold. Yeah. Yeah. हमेशा से I was bold. You know, people say that downtown is कोर्शासन वारियत तेज. No, we can't say teज. This is like that you are giving your words. You are putting forward your words the way you want to. Yeah. Yeah. Whether it was louder. Precise. Yeah, precise, very precise. But वो क्यों कहते हैं कि ये मुझे तेज? क्योंकि हमें हमारी बात रखना आता है. In a very good tone. Okay. Very disciplined. Okay. So we know that how to do it. This is not about downtown, everywhere in Kashmir. Although girls are always bold, which I have seen. I have met people, I have met girls, so lovely girls, very bold girls in my fraternity as well. Okay. तो अगर मैं बात करूँ मेरे childhood की, मैं पहले से ही झंडे हाथ में लेके रह चुकी हूँ since my childhood. Okay, even from my school as well, I was always leading the parades. I was always head to the मैं prayer start करूँगी. So my जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे या फिर मेरे कॉलेज के थे professors even. I graduated from the ICSC Islamic College from being a management student. Okay, so you were into management at first. I was first in management. Lovely. But see, there are other backgrounds as well. Okay. Till 12th, I was a science student. Then I changed it. I was like, no, this is not giving me that vibe. वो आपने साइंस खुद लिया था? साइंस लिया था खुद. No, that was my choice to be on that first. Okay. Because मेरे में ये फिर उसके बाद क्या था ना कि ऐसे हालात बने कि I could not continue that. अच्छा ठीक. हर किसी का different perspective था. My family is they are running business all over. My whole family is running a business. We are a business family. Okay. So there is no sometime कि अब कोई डॉक्टर बनेगा, अब कोई ये बनेगा. हर किसी का अपना माइंड, जिसको जो करना है करो. ठीक. So that was not giving me that vibe कि मैं कहीं ना कहीं तो लीड नहीं कर पा रही हूँ. That was kind of thing. Okay. हर साइड से आना जाना, इधर से जाना, ये ट्यूशन वो ट्यूशन लेना. Then I told my father कि मुझे बदलना है. I need to change it. He didn't say why. He said, are you satisfied with it? मैंने कहा हाँ. He said, go for it. Even we are 5 siblings basically. Okay. 4 sisters. I'm the younger one. So they were against कि तुम नहीं कर सकती हो ये, तुम्हें डॉक्टर बनना है, because they were already doing excel in their own.
तो मैं तो हर किसी में थी, तो मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी ऑन दैट पार्ट. Okay. बट जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, हर टाइम पे माई प्रोफेसर वर लाइक यू आर नॉट मेंट टू बी हियर, Okay. you have to lead your अच्छा. because in my college as well, I was a head girl अच्छा. at that So time. leadership qualities Yeah, हमेशा there से were थी. always leadership qualities in me. अच्छा, ठीक. I cannot dominate. मैं नहीं कर सकती थी वो चीज कि मुझे कोई दबा के रखे. There was not sometimes. Then when I qualified graduation from the Islamic college, so that time also, even in 12th also, there was something, but there was a proper guidance नहीं थी मेरे में अच्छा, कि ठीक. अब आप ऐसे कर सकते हो, इस बात पे चलो तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा. लॉन्ग रूट लेना पड़ा, बट राइट डायरेक्शन में पहुंची. जहाँ पहुंचना था मंजिल पे वक्त पहुंच लगा, गए. बट बहुत अच्छा था. This was very inspiring for me. Very much learning. There were a lot of things which I have learned from this. लोगों ने बोला, अरे तुमने क्या किया, पहले तुमने मेडिकल ले लिया, फिर तुम कॉमर्स में आई, अब तुम लॉ करोगी, क्यों? That was my own. Altogether different scenarios, no? But that gave me the wider sense. Exposure मिला. That was wider. First मेरा साइंस, उसके बाद मेरा कॉमर्स. I was into management. फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, जस्ट मेरा क्वालिफाई यहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ. सो मुझ में ऐसा था कि मैं बैठ नहीं सकती. I cannot sit. तो फॉर 3-4 महीने ही जब तक मेरा एंट्रेंस होता, I joined a course. अच्छा, ठीक. एकेडमिक लॉ बोलते हैं उसको. अच्छा, ठीक. तो काइंड ऑफ डिस्टेंस मोड वाला. तो मैंने इसलिए क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था, मैं अगर घर पे बैठ के प्रिपेयर नहीं कर सकती थी. So there was a professor, he's my mentor as well. He said, Rukaiya, you cannot do this to yourself. You're going it back. I'm not distance में नहीं आ रही हूँ मैं, मुझे qualify करना है. That also added my knowledge because I already learned 6 months there in academics. उसके बाद जो 6 महीने मैंने पढ़ा, मेरा already 1-2 सेमेस्टर कवर हो चुका था जब मैंने लॉ क्वालिफाई किया. Then अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंट्रेंस किया, और मेन एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई इन टॉप रैंक्स में मैंने कर दिया. Okay. पहले ही लॉ कैंपस में मेरा यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई हो गया. Okay, lovely. So since my law, what was very important thing was मुझे पहले से अच्छे टीचर्स मिले. Since very beginning. पता नहीं somehow कैसे टीचर्स were very much attached to me. हर चीज को लेके ज्यादा हंस नहीं सकते, तुम्हें वो करना है, मतलब they were, हर किसी के साथ नहीं ऐसा होता मुझे लगता है. मैं I was blessed since very beginning. Professors, they were very attached to this कि तुम करो ऐसा. Although so you I was not had very good guidance. Yeah, very good guidance in that. पहले से, क्योंकि मेरी गाइडेंस एक ऐसी हर चीज की, मतलब मेरा हर एक इंसान के लिए एक मशवरा है कि कभी मत शर्माओ हेल्प लेने से. यू शुड गो फॉर इट. मैं प्रोफेसर्स के चैम्बर, जो हमारी फीमेल प्रोफेसर्स थी हमारी यूनिवर्सिटी में, वेरी ब्लेस्ड, दे आर सो गुड, आई कांट इवन एक्सप्लेन. मैं जाती उनके चैम्बर को नॉक करती, मैम यहाँ मुझे क्लियर नहीं हो गया, ये करो. अच्छा ठीक है. दे वर ऑल्सो मतलब हैप्पी कि कोई हमारे पास आके हमसे ले रहा है नोटिस कि हमें ऐसा करो, कोई सीख रहा है. हाँ, लाइब्रेरी में हम एक्स्ट्रा टाइम देते थे यूनिवर्सिटी में. दैट वाज वेरी मच गुड. वो मेरा जर्नी रह चुका है फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड टू कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी. दैट वाज वेरी गुड टिल आई बिकेम अ लॉयर. ऑल्दो वो मेरे बचपन से ही दिमाग में था कहीं ना कहीं से निकलना है, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं, जिस जगह हम रहते हैं, यू ऑलवेज इंटरेक्ट लॉ, जस्टिस, राइट्स. कभी तो वायलेट हो चुके हैं, वायलेट हो रहे हैं, एंड वो कहते हैं जस्टिस की तलाश में. Okay, pun intended. Yeah, okay. This was always into me. Okay. So आपने लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया, राइट? You pursued your law from कश्मीर यूनिवर्सिटी. 100%. तो उसके बाद बाकी ट्रेनिंग या एक्सपोजर के लिए आप बाहर वगैरह गए? हाँ, फिर सिंस मैंने कहा मैंने जो लॉ कंप्लीट मेरा हो गया, हमारा ग्रैंड वाइवा होता है और एक मूड्स होते हैं हमारे. सो मेरे लिए एक्सपोजर पहले वहां से स्टार्ट हुआ जब हमारे मूड कोर्ट्स होते थे. हमारे जो रिटायर्ड जजेस थे वो हमें कोर्ट आते थे. सो आई वाज ऑलवेज कि मुझे वैसे प्रिपेयर करना है एज अ फैमिन कोर्ट. माय प्रोफेसर्स, ऑल्दो आई रिमेंबर द नेम, आई वोंट नेम देम, वो मुझे उस वक्त ही बोलते थे तुम्हें जैसे जंग को जाना है, आहिस्ता आहिस्ता करो, तुम इसको इतना बीट कर रही हो कि इतना नहीं करना है. बट आई वाज लाइक क्यों नहीं करूं, मुझे केस जीतना है, मुझे करना है किसी भी हाल में ऐसे. सो आई वाज, मतलब मुझे मूड कोर्ट्स में, बाकी एकेडमिक्स की बात करें, आई वाज नॉट दैट बोल्ड स्टूडेंट. अब मैं 100% लाती थी, नो, एवरेज स्टूडेंट, लिटिल बिट हायर बोलो. एकेडमिक्स मेरे वैसे रह चुके, बट मेरे पास जुबान थी. आई वाज नॉट क्वाइट, नहीं आता मगर बोलो. अच्छा, चुप नहीं बैठना. मूड कोर्ट ऐसा होता था, आपको पता है क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, मैं रात लगाती, सुबह बैठ के रात को 3 बजे तक पढ़ती
So क्योंकि you were मुझे- enthusiastic in that regard, no? I am, even अच्छा. though I said कि even अभी भी अगर मैं घर से निकलती हूँ ना, मुझ में एक एक्साइटमेंट होती है. This profession is giving me those vibes and I'm always excited. आज तो ऐसा हो जाएगा, आज वैसा हो जाएगा. Always dress up with that, with the mindset कि मुझे करना है ये. Because this was my choice. Otherwise लोगों का क्या कहना होता है कि आप जो है स्कोर ने कहें तो स्वसा लॉ करने. अच्छा. MS मिलियनों कोई नहीं किया. But even I was also told. अच्छा. By the society, by the people. अच्छा. Yeah, by the people. Although मेरा एक चीज था, जब मैं स्कूल में थी, मेरा हमेशा मेरे पोजीशंस आते थे. मतलब तमसा था स्कॉलरशिप तारा. हर यात्मंस था, हर वरी स्कॉलरशिप तारा. अगर मैं पहले मैं स्टार्ट मेरा लोकल स्कूल में, जो हमारा नॉर्मल स्कूल होता है, जो गली कोचों में हमारे स्कूल्स होते हैं नॉर्मली, वैसा. तो देन आफ्टर शिफ्ट टू आरपी. तो इसमें क्या था कि मेन चीज है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी हर साल. मतलब चाहे 400 रुपए 300 रुपए, बचपन था वैसा. टिल माई 10th. ओके. सिंस माई चाइल्डहुड हर साल मुझे एक स्कॉलरशिप मिलती थी. ब्रिलियंट किड. ओके. मतलब पता नहीं ब्रिलियंट में, मैंने कहा ना मेरा एकेडमिक्स वैसा नहीं था, पर कहीं ना कहीं से मैं लीड कर लेती थी. वैसा था. दैट वाज क्योंकि मैं हमेशा खुश होती थी इस चीज को लेके कि आई हैव टू डू इट. डिस्पाइट बीइंग लाइक वो कहते हैं ना अटैक्ड बाय पीपल. बहुत से ऐसी चैलेंजेस आई लाइफ में. फिर उसके बाद जैसे ही मैंने लॉ कंप्लीट किया, मैं शिफ्ट हुई दिल्ली. ओके. दिल्ली. या इवन बिफोर मेरा 4th सेमेस्टर ही था. मैंने कहा मेरे हमारे वेकेशन होते थे यहाँ, मैं दिल्ली शिफ्ट करती. आई एम ब्लेस्ड, मेरे डैड ऐसे थे कि ही नेवर से नो. ऑल्दो उनका ऐसा अप्रोच हमेशा रह चुका है कि अगर तुम्हें करना है तो डू इट. आई ट्रस्ट यू. ही वाज लाइक तुम्हें जो आदमी करता है करो, बट यू नो योर लिमिट्स, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू विल डू इट. आई ट्रस्ट यू, डू इट. तो मैं दिल्ली होके चैम्बर्स मैंने स्टार्ट किया, चैम्बर प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने. सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के साथ मैंने काम किया. फिर जैसे मेरा यहाँ पे ग्रैंड वाइवा हुआ, आज उसमें दोपहर ग्रैंड वाइवा, दूसरे दिन सुबह मैं कोर्ट चली. मतलब ना लाइसेंस हाथ में, रिजल्ट हाथ में. मतलब ऐसा होता है ना कि रिजल्ट तो आने दो. नहीं, जॉइंट फर्म. वो भी मैंने फर्म ज्वाइन की, मतलब दैट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट फर्म. ओके. पहले ही मैंने वो स्टार्ट किया. दैट वाज लाइक मेरा वो चीज रह चुका है. वो चीज था कि अल्हम्दुलिल्लाह. मगर ये तब हुआ जब मेरा वो कॉन्फिडेंस अनशेकेबल था. देयर वाज अ कंसिस्टेंसी. देयर वाज वो चाहत थी, मुझे समझना है, मुझे करना है. जो मैंने अभी तक किया है ना, मेरी जो बड़ी दी एल्डर वन, शी इज सेटल्ड इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम लास्ट 15 years. ओके. Because of her, I have shaped like this. Because उनकी उसकी वो कहते हैं ना, वो छत्र छाया में आप पले हो. वो एक ऐसा छांटा लेके पीछे होती थी ना, you have to do it. Because हमने ट्यूटर कभी नहीं देखा है. So she has shaped. She has shaped me. All of us, although I can say it. फिर उसके बाद अल्लाह का करम था कि I got married to a man who has given me wings. Who gave me wings. Lovely. My family, my father-in-law, my sister-in-laws, my mother-in-law. Okay. Like they're like, yeah, she gave me punch in the morning. Your best of luck for your interview. Lovely people. मैंने कहा मैं blessed रह चुकी हूँ. So you have had those people to boost you. तभी मैं कर सकती हूँ. मैं हर किसी लड़की के लिए कहती हूँ कि आप आगे आओ. और ये तब होता है, ये हर किसी पेरेंट के लिए है. सही बात है. जब तक एक लड़की को सपोर्ट, एक राइट गाइडेंस नहीं मिलती, शी कांट डू इट. और ये गलत है कहना कि कुर्थ हादसमंस. जब उसको पता होता है ना, आपने शेप किया है ना, वो हदूद में खुद रहती है. एक लड़की को अपनी हद पता है, उसको पता होती है मैं क्या कर रही हूँ. उसके बाद जब मैं दिल्ली से वापस आई, दैट शेप्ड माय करियर. अभी मेरा थॉट शायद 2% भी नहीं था, वो 15% बना. मेरा डिफरेंट बना, मैनेजमेंट मिला. बिकॉज वंस आई केम फ्रॉम अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड एंड टुगेदर लॉ एंड मैनेजमेंट गेव मी अ वाइडर सेंस. इट मेड मी थिंक दैट कि अगर लॉ इस तरीके से काम करता है, मैनेजमेंट उसको संभालता कैसे है. कभी ऐसे बोलते हैं लोग कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को होता है लॉ से क्या उसी कारण में लॉयर भी मैं क्या कर रखा है. जुडिशरी एंट्रेंस है, जज बनक. ये कोई जुबान फेरा नहीं होता. आपने जुबान फेरी और जज बन गए. बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई ज्वाइन लॉ. मैं हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, जो हमारे टॉप लॉयर्स रह चुके हैं, हमारे जो हमें आते थे यूनिवर्सिटी,
मैं पहले होती थी क्वेश्चंस की इतनी बड़ी लिस्ट लेके कि मैं अब इनको बोलूं कि बेस्ट लॉयर कैसे बनते हैं. आई हैव आस्क्ड इवन क्वेश्चंस, पीपल आर कॉलिंग मी फूल, तुम क्यों बार बार पे क्वेश्चंस पूछती हो. बट दैट क्यूरियोसिटी वाज ऑलवेज देयर इन मी. इवन अभी भी आई कॉल माई सीनियर्स थ्राइस अ डे. सर आज ऐसा केस आया मेरे पास, मुझे पता होता है मुझे क्या करना है, बट वो जस्ट फॉर माई सेल्फ कि मैं उस मामले में भी मैं बहुत ब्लेस्ड रह चुकी हूँ. सिंस वेरी बिगनिंग माई सीनियर्स गेव मी ब्रीफ, रुकैया टेक इट और क्यों द मैटर, जो केस को हो जाए हम संभाल लेंगे. बट दे वर दैट श्योर कि उनको कॉन्फिडेंस था मुझ में कि शी विल हैंडल इट. आप कश्मीर में प्रैक्टिस कर रही हैं एंड यू नो कश्मीर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया, राइट? सो व्हाट मेड यू थॉट कि मैं लॉयर बनूंगी, ठीक है, आई वॉन्ट टू परस्यू दिस लीगल प्रोफेशन एंड दैट टू इन कश्मीर, एंड फिर आपने इसको शिफ्ट कैसे दिया एक एंटरप्रेन्योरल पाथ पर? मैंने कहा ना, लॉ कभी डिस्कनेक्टेड था नहीं मुझ में. सिंस माई चाइल्डहुड लॉ वॉज ऑलवेज सम बाय दिस शेप और बाय अदर शेप. मेरे सामने हमेशा लॉ आता था, चाहे वो लॉ राइट्स की बात होती थी, जस्टिस की बात होती थी, because I have very closely seen, deeply seen that how the legal decision is, that affects a common person. How maybe कभी किसी को destroy करता है, कभी किसी को उठाता है, and mostly those people who don't have voices. किस तरीके से एक लीगल डिसीजन एक इंसान पर इफेक्ट करता है. एंड इट वाज अ काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग कॉलिंग, ऑलवेज अराउंड यू. इट वाज लाइफ लॉन्ग कॉलिंग इन मी. वो कहते हैं ना, नींद में सो के तुम्हें कुछ बुला रहा होता है, चीख रही होती कानों में. इवन दो डूइंग हाउस होल्ड चोर्स यू डूइंग इट, मेरे दिमाग में केस चल रहा होता है. वेदर आई एम स्लीपिंग, कभी मैं रात को उठ के जहन में मुझे आता था कि मेरा एक आर्ग्यूमेंट जहन में आया, मैं उठती जल्दी से डायरी खोल के आर्ग्यूमेंट लिखना है, क्योंकि दैट्स द बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो आपको लेट नाइट पे आता है. ओके. कभी तो केस खत्म होके आ जाता है बेस्ट आर्ग्यूमेंट. ओके. ऐसे भी होते हैं. मगर जो कश्मीर में एक चीज था कि लॉ प्रोफेशन वाइडर है. अगर हम बाकी जगहों पे जाएंगे, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, आई प्रैक्टिस बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल, आई प्रैक्टिस बिफोर NCLT जो हमारी लॉ ट्रिब्यूनल्स है. इवन ऑल्दो आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल ओवर कश्मीर राइट नाउ. माय फर्म इज like we have associates in Kulgam, we have associates in Budgam, Ganderbal, other districts and district Srinagar as well. मैं mostly practice खुद हाई कोर्ट में करती हूँ, बट मेरी फर्म जो है वो ऑल ओवर करती है प्रैक्टिस. इसलिए there are almost 5 to 6 people we are working. Mostly we are women. There are women. Yeah, because it's a women led. Yeah, mostly we are women. Although men are also working, they're very much cooperative with me. My associates, my colleagues as well, they're working other districts. उनका है कि they have that trust that Ruqayya will do this. Otherwise there are other lawyers as well. वो उनको कभी भी हाई कोर्ट का ये होता है कि हाँ रुकैया यू विल डू दैट. ये चीज होती है कि मुझ में ये चीज था कि मुझे क्यों कश्मीर में इस चीज को करना था परस्यू, कि बाकी जगह में क्यों जाऊं. दिस इज माई place. How can I leave this place? Although I have, how can I make round difference in my own place? This was the thing कि ऐसे भी लोग मेरे बचपन में मैंने देखे हैं. एक केस मैंने ऐसा पढ़ा था, that time I was helpless. Kind of cases कि मैं बोलती कि मैं इसकी आवाज बनूं, आगे जाऊं, मैं कैसे करूं. Although I am dealing with a lot of pro bono matters, I have dealt almost 150 pro bono matters, I can say it, 150 pro bono, more than that even, pro bono matters, which I am doing it right now as well. I have pro bono matters in my hand. क्योंकि ये लॉ एक ऐसी जगह है जो सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता. People are like lawyers जो सारे को ज़्यादा पहुंच देना है, मासा चसान इम चीज लूटान. This is not everything what this is a one sense you're checking. हाँ जी वकील जो आए पहुंच कमाओ. वाइड सेंस में इसको हम देखेंगे, वकील एक ऐसा इंसान होता है जो एक बेजुबान को जुबान देता है. Yeah, you give voice to the voiceless, no? 100%. So इसमें अलग अलग, जब एक मैनेजमेंट और लॉ मिलता है, मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि आपको किस तरीके से इसको शेप देना है. हाउ यू मेक इट एज प्लेस जहाँ पे और भी काम करे. लॉयर, आई एम अ लॉयर, एग्जाम्पल आई एम वर्किंग माई सेल्फ, मेरे साथ और दो काम करते हैं. वो मेरे थ्रू, मैंने बोलूंगी मेरे थ्रू उनको अल्लाह का मैंने भी काम किया है किसी के अंडर. 5-6 लोग हम लोग एक सीनियर के अंडर काम करते. दैट इज जो एक खुद एंटरप्रेन्योर आपको बनाता है. बिकॉज वंस अ लॉ इज टीचिंग यू हाउ टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द जस्टिस, राइट्स, प्रोसीजर एंड द मैनेजमेंट, it shows you how to give the shape, structure,
सस्टेनेबिलिटी कैसे कर सकते हैं. तो वो एक इम्पॉर्टेंट है. मुझे लगता है अगर मैनेजमेंट बैकबोन है, लॉ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है. हाउ यू विल मैनेज इट, Yes, exactly. हाउ यू विल मैनेज दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल. It's a women-led law firm, right? You might have a name for it as well, right? रुकैया सिद्दीकी लॉ एसोसिएट्स. Yeah, lovely. So it's not that easy कि आप एक law firm खड़ी करो, वो भी एक male-dominated area में, एक male-dominated profession में, right? आपको काफी challenges रहे होंगे, काफी hurdles रहे होंगे, and वो visible भी रहे होंगे, invisible भी रहे होंगे. 100%. वुमेन इसमें है कि like that was a kind of calling in me that I have to start my own. It was the first time when I argued my own case, I felt that freedom in me. I'm free. I can do it. Okay. And when I was confident, when I was completely resilient, when I was consistent towards my matter, and when I had a result in my hand, I was so much thrilled कि मैंने किया और मैं खुद कर सकती हूँ. Although I am a person who was first generation lawyer, there was no godfather, there was no chambers who would already stand for me, there was no zero work. From first it was zero work, it was no money, it was nothing. It was just मेरे पास इतना, मैं हमेशा एक चीज मेरे में था कि मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ. मुझे किसी के लिए कुछ करना है और मुझे नाम बनाना है. This was in me always. कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आप चीखो चिल्लाओ, आप अपनी बात रख सकते हो और बहुत अच्छे से रख सकते हो और तरीके से रख सकते हो. And it gives you wings when you know how to put forward your word. Yes. And even though seniors, judges also recognize it. They do recognize it. आधे लोगों का ये कंसर्न होता है कि फीमेल है, इसको नहीं मिलेगा उतना, ये आगे क्या करेगी. Even your colleagues, seniors, they are very keenly looking at you. They're just watching you. कि इतना ऐसा है कि रह पाएगी, इसका तो कोई फील्ड ही नहीं है, बैक ही नहीं है, आ जाएगी कल नहीं टिकेगी. But it needs a lot of patience. वो एक patient रहना था, consistent रही, patient. There were days, there were nights, there were months when there was no work. But you're still in the morning with the polished shoes, with the uniform, you're coming with that enthusiasm in a court, with the dress, and you're sitting in a courtroom. And सबसे important चीज, the way you said that male-dominated field. Female जब एक argue करती है, एक नहीं, दो नहीं, 20-200 लोग आते हैं कोर्ट में. मतलब मैं नहीं कहूंगी कि कोई अनहैप्पी, खुश होते हैं that she's arguing this way. हैप्पी, बहुत खुश होते हैं कि हाँ जी देखो लड़की ने किया. उनका नहीं होता है वैसा कि ये कर पाएगी, उनको पता होता है नहीं कर पाएगी. मोस्टली उनका 100% होता है कि कहाँ कर पाएगी, अरे आज आई कल छोड़ देगी प्रैक्टिस. आफ्टर जस्ट 15 days of my marriage I joined bar again. Just 15 days. मतलब 15 तो गई, I joined court. Again. They were seniors were shocked. What are you doing here? Just before 2 weeks you got married. So what? There was a Why is it commitment. over there? Why is it happening? Because we've also seen it, and it's like very common these days that we see कि जाती हैं लड़कियां, okay, they pursue their degree, and somehow they stop. They don't move ahead. Why is it over there? Maybe they don't have that support which I had. Maybe that's true. That's very important. Yeah. ऐसा भी होता है. I have seen that female जो they are pregnant, they're having their kids in their hand, they're having 2-3 babies. They're still in court. I've seen it. There are, वो कहते हैं कि हमेशा हर एक चीज के दो पहलू, दे पहलू होते हैं. बट मेरे सामने ऐसी फीमेल्स है जो मिसाल है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादियां हो चुकी है, जो माशाल्लाह मदर्स है, कुछ तो दादीज भी है. They're still in court. Lovely. Because you need a support. Yeah. जैसे मैंने कहा ना, जैसे मुझे सपोर्ट मेरे फादर का था, मेरी मेंटर्स का था, then my husband. बिगेस्ट रोल इन लाइफ. कि अभी तक जो जैसे एग्जाम्पल, एक लड़की विद विंग्स आती है और आप उसके पार काट देते हो, वेयर शी विल गो? शी विल नॉट गो एनीवेयर. शी डोंट हैव सपोर्ट. उसको कहा जाता है अब तुम घर पे बैठो. बहुत से ऐसे सीनियर्स भी जहन में रखते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड फील्ड में होता है कि अगर खानदार तो माकले मिस प्रैक्टिस वहाँ क्या कह रही था माकले. I have been also asked, even if I'm on a vacation, Sama throw court. मतलब उनका माइंड ही वैसे बना होता है. So it's the mindset around you that
दिस माइंडसेट अराउंड यू. वो Makes कहते you हैं take जो a decision. ओल्ड स्कूल होते हैं ना, ओल्ड स्कूल जैसे बोलते हैं, कोई किसी क्लब बना होता है एक कि हाँ जी आदमियों की जगह है, यहाँ औरत नहीं. प्रैक्टिस हसा छैन वुमेन खतर. But I am watching it closely every day. The young lawyers, they have so much a man cannot have. They don't have that knowledge of women. A woman can practice all over 24 hours. A man has, they don't have that thing. कि तुम करन सुबह एक पटे शाम तम practice पत करन शाम छलन गए बान. They can't do that. Women are doing that, right? That is so true. That women are doing that because I have seen it since early in the morning. You have a commitment. I have a client. Early in the morning, वो बेचारा कुपवारा से आता है. सुबह 9 बजे वो मेरे चैम्बर के पास होता है. I have a commitment. Obviously. I have to be consistent. I have to be very transparent to him. When I am giving him results, he is very much. उसको ऊपर वाले के बाद मुझ पे भरोसा होता है कि she'll do it. When you started this firm, how were you able to? I was the only one. When I started, I was the only one. Then how did you gain this trust and accountability? No, when I started it, I was the only person. When I started Ruqayya Siddiqui Law Associates. Okay. So it was like after COVID, I started it. Although I said I was working closely with my colleagues, my seniors. I was working with them. I was extracting that knowledge कि मुझे करना है. उनके जो मेरे drafting skills उतनी strong नहीं थे since beginning. But जो उनके drafts थे, what I did कि मैं उसको redraft करती. अच्छा. उसको समझती ऐसे करना है. फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि people trust. पहले तो colleagues ने बोला कि नहीं, she can't do it. हंसते थे. अच्छा ठीक है, मतलब अपनी जगह आपको नहीं दिखाएंगे. अच्छा यार चाहिए कि ना ऐसे करा, मतलब इतना नहीं था. Once they see consistent, you are consistent. एक वुमेन को कितने हर्डल्स आते हैं लाइफ में. शी इज गोइंग थ्रू दी हेल्थ चैलेंजेस, शी इज गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस. यू कांट से दैट आई वाज इन कोर्ट, नाउ आई कैन डू हाउस होल्ड चोर्स. यू कांट डू इट. यू हैव टू बी स्टैंड एंड यू हैव टू पुट दैट स्माइल ऑन योर फेस, नाउ आई एम डूइंग इट. और उसके बाद लेट नाइट आपको वापस अपने केसेस पे प्रिपेयर करना पड़ता है. अर्ली मॉर्निंग यू स्टैंडिंग अप, यू गोइंग टू कोर्ट. अपनी आप जितनी भी कॉन्फिडेंस आप में होती है, आप में जितनी भी नॉलेज होती है, आप क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंटली बात करती हो. फिर जब आपके हाथ में रिजल्ट आता है, उसका फल आपको अलग तरीके से मिलता है. एंड मुझे लगता है ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना इस चीज को लेके कि आप इस फील्ड में आते हो और उस किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसे होते हैं कि जो इसको एज अ चांस लेते हैं. ठीक, आपके पास कुछ नहीं है, आप लॉयर बने. वो पहले ही थके होते हैं. उनका माइंड, उनका दिल पहले ही थका होता है कि मैंने कुछ नहीं कमाया. लॉ इज नॉट ऑल अबाउट मनी. This is about continuous process. Somebody will say, I know the law, I'm a successful. Nobody is successful. Nobody on earth. Even our most seniors, हमारे जो कपिल सिब्बल सर है, मतलब हम उनके मैंने सुने हुए हैं वर्ड्स कि on earth nobody is a successful person in law, even though judges, because law is a continuous process. This is a continuous learning. We are law students. I'm a law student. Somebody will say, I'm not a lawyer, I'm a law student. I'm learning. Every day I'm learning. There's a new judgment in my hand. There's a new book. हमारे परसों ही हमारे BNS चेंज हो चुके हैं. हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे वो चेंज हो चुके हैं. Everything changed. हमारे लॉ स्कूल ने हमने कुछ और दिखाया. फिर जब हम फील्ड में आए, difference when you come to, on ground level. Practice is different. Practice, जैसे हम एग्जाम्पल, हम लोग अरबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, अरबी लैंग्वेज करते हैं. इट इज देयर इज अ डिफरेंस. या दैट इज ट्रू. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हमारी होती है, जो हम लिखते हैं, हमारी बोलने की लैंग्वेज डिफरेंट होती है. जब हम लोग लॉ स्कूल में थे, आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, अब मैंने पढ़ा है ना, अब तो मुझे आएगा, अब ये करना है. बट समहाउ मैं कोर्ट, लॉ स्कूल के दौरान ही मैं कोर्ट जाती. अच्छा. कोर्ट में क्लोजली देखती थी कि क्या हो रहा है, ये तो कुछ और ही है. हम तो पढ़ते कुछ और है, यहाँ के कुछ और ही है. तो लेबर लॉ तो किसी काम में ही नहीं आएगा, मतलब ऐसा सिचुएशन था. बिकॉज यू क्वालिफाई 48 लॉ बुक्स, देन यू बिकम अ लॉयर. दिस इज नॉट समथिंग यू क्वालिफाइंग. देयर आर 48 मोर देन 48 बुक्स यू क्वालिफाई. मतलब मेन कोर्स की बात कर रही हूँ मैं. ओके. एक लॉयर बनने के लिए बहुत सारे पापड़ झेलने पड़ते हैं, स्पेशली फॉर अ वुमेन, क्योंकि आपको बहुत से ऑप्शंस दिए जाते हैं कि याची से पारुन, याची से लॉ करो, नाची से गछुन, नाची करुन कम सकार सा कम पन सा जज. Being even on a seat,
Do you think so that you will handle your household? Female judges are doing that. There are some things that only women can do, I believe. Men cannot do that. I am saying it if I am working, since example मैं 6 बजे उठूंगी, 10 बजे तक आपको घर पे खड़ा रहना होता है. You have to stand. You have your husband. You have your family. You have to feed them. You can't say कि मैंने human responsibility नहीं है. Men cannot do that. Men are ready in the morning. आप उनको चाय पिलाओ, खिलाओ, शाम को वापस आके थक के वापस उनको चाय पिलाओ, खिलाओ. एक चीज अच्छी चीज है ना हमें, एक वुमेन में, कि वो अपने साथ साथ सबका ख्याल रखती है. That's how she can be a mother. उसमें एक मदरली नेचर सिंस बिगनिंग होता है, even though if she is mother or not. But we are seeing a change. We have observed a change. 100%. Men are getting in that zone. 100%. That is They what I are believe. very helpful. अभी की बात करूंगी, मैंने कहा ना अभी की बात करूंगी तो एक men are. I guess there are many things that we relate to our past because of some, the traditions or cultures we had over here. But at the same time, I believe कि अब because जो हमारी education है, it is getting much more morally implemented in men. So things are changing. Everything has changed. The way men were thinking, now things are definite, completely changed. They're thinking in a different sense. पहले जो गलत होता था, आज बोलते क्या नहीं, जो ऐसे करो, ये हमारे लिए जरूरी है. पहले आदमियों के लिए हद तक होता था कि बहक नहीं काबतुल्य तेरे पर होर तमकीन बिरो शौक मारत. They cannot. Now things are like a man is helping you. Yeah. They're helping you in their household And they're beside. Yeah. They're giving you wings कि तुम अपना push ले लो, अपने आप पे काम करो, because you have your own personality. Your own capacity as You have your own personality, your own capacity, you have your own confidence. तुम अपने आप को वैसे shape करो because you know what you are. And I wish कि हर किसी पेरेंट और हर किसी हस्बैंड को ये जहन आ जाए कि एक फीमेल की भी अपनी आइडेंटिटी होती है. There are so much हमारे इस्लाम की अगर हम बात करें कि हमारे इस्लाम ने हमें स्टॉप नहीं किया है कि आप बाहर जाओ. अगर हम मजहब की बात करें तो हज़रत खदीजतुल कुबरा जो हम सब की वहाँ रह चुकी है, मतलब है, हम लोग उनकी बात करें तो वो सबसे पहली ताजरा थी. शी वॉज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर. Yeah, that is true. वो एक्सेल करती थी उस वक्त. लेकिन अब हर किसी में एक हद होती है. जिस फील्ड में हम काम करते हैं, जो एक पूरी तरह से 90% 99% मेल डोमिनेटेड फील्ड है, जहाँ पे सिर्फ आपको आदमी मिलते हैं. Now it's up to a woman. It's up to you how you will handle it, how you will manage your behavior at workplace. There are so many things you can't handle it. हर साल हम एक ऐसे खूबसूरत चेहरे और एक टेरिस्ट पीपल देखते हैं ना, वो अलग लेवल का, उनमें एक एंथुसियाज्म होता है. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें करना है. दे कम इनटू हाई कोर्ट डायरेक्टली. बट एक महीना होता है, दूसरा महीना होता है, दे आर गॉन, दे आर नोवेयर. वो नहीं होते बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस. हर टाइम पे आपको सब कुछ सही नहीं मिलता. Exactly. यू हैव टू, हर वो कहते हैं ना कि कुल मिलान अक्सी जाए, अगर सो तम सो अक्सी जाए ना, अगर सो काडोन अक जाए बिक जात राउंड सुशन रोजान ठीक है मूल रटन सो अक्सी जाए. तो उसको आगे फल देने के लिए उसको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है. स्टॉर्म्स आ जाते हैं, कितने सारे शैटर कर लेते हैं आपको. और ये तो बहुत ज्यादा चीज है कि आपको अगर एक केस उल्टा शुल्टा कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर हर जगह चर्चे चलेंगे, अरे इसको तो बेइज्जती पड़ी कोर्ट से. लवली. हम अपनी कानूनी बातें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम खैबर वाला ब्रेक. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं.
खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं अपने लॉ टॉक्स की तरफ। सो रुकैया जी, मुझे बता दीजिए, बिकॉज आपने ये जो लॉ फर्म खड़ा की, इससे पहले आप बाहर भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया है, एंड थ्रू आउट इंडिया यू हैव वर्कड एंड गेन्ड एक्सपीरियंस। तो बाहर आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिला होगा और आपने सिस्टम में, इस लीगल पूरे इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस देखी होंगी, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, एंड कमिंग बैक यू प्रैक्टिस्ड ओवर हियर। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड? There are a lot of differences. मैंने कहा ना, when I was in Delhi, when I argued before one of the tribunal in Delhi, what was very important thing is they accommodate you so beautifully. The way you argue, I was like, यहाँ तो मेल फीमेल है ही नहीं. They giving you more chances than a male. वो तो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं. Why you, आप किस चीज के लिए डर रहे हो? There is no gender You cannot be inequality. hesitant. Yeah. और सबसे important चीज, you can't say no to your cases. Whether there is a good case, a bad case. You can't say, अच्छा ये मैं नहीं कर सकती. Why would you do that? That's what आपका confidence आपका shatter कर लेता है. I'm telling you one thing कि जो मेरा year of practice है, since very beginning, मैं ऐसे केसेस लेती रही कि जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, जिनमें शायद मुझे ऐसा था कि क्या मैं इस क्लाइंट के साथ जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं. बट द टाइम आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, दैट थिंग वैनिश्ड कंप्लीटली. दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग कि आई एम नॉट लेस देन अ मैन. आई एम प्रैक्टिसिंग, दिस इज माई वर्क, आई एम हार्ड वर्किंग ऑन इट, आई हैव अ लॉ. मैं हर कोई लीगल फ्रेमवर्क पूरी तरह से करूंगी. आई एम नॉट लेस देन अ मैन. चाहे वो मेरा सीनियर लॉयर क्यों नहीं अपोजिट में खड़ा हो, चाहे एक जूनियर लॉयर हो. मेरी अपनी कोशिश थी कि मुझे अपने केस को आगे बढ़ाना है. हार जीत, जब बोलते हैं हार जीत तो आपके हाथ में नहीं है, वो होता है. But this is your work. You have to give it 100%. This was the first thing in my mind कि मैं जब वापस आके, ये चीज था कि मुझे अपना करना है और पहले दिन से करना है. Even though working with seniors, मुझे अपनी litigation थी. I was not into this thing कि अब बस senior के साथ काम करना है, उनकी फाइल उठा के वापस रखनी है. No. उनकी फाइल से मैं अपने केसेस के लिए तैयारियां करती थी कि मुझे अपनी फर्म, मुझे अपना करना है, स्टार्ट करना है. पहले ऐसा था कि सब में शक था. क्लाइंट्स भी ऐसे थी, मैम आप कर पाओगी, आपसे हो पाएगा. तो मैं उनको, मेरा ये था कि कोई बात नहीं, मैं आपको 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, बट आई नो कि आई विल गिव माय 100%. But how do you choose what case is good and what case is bad? I have been blessed by my seniors and mentors. They were very good with me always. उनके काम करने का तरीका ऐसा था कि आपको पता चलता है कि केस के पिलर्स कैसे हैं. How you are holding a case. आपके हाथ में अगर केस आता है, आपको पता चलता है कि अच्छा ज़ांगात केसेस किन्ना. हवा में तीर मारना अच्छा नहीं होता. कोई बोलता है कोई भी केस ले लो. नो, आई डोंट टेक इट. आई डोंट टेक ऑल द केसेस. ऑल्दो आई कैन टेक एवरी केस फ्रॉम जो किसी भी टाइप का हो, बट ऑल द केसेस यू कैन नॉट टेक इट. कि आता है ज़ांगा के बमन बासा कर रहे बराट पहुंच. नो, माय सीनियर्स जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि हर कोई केस आप नहीं ले सकते. Exactly. आपको देखना है कि आपके पैरामीटर्स आते भी है कि नहीं. कहीं आपका, जहां पे आपका लीगल नॉलेज की जरूरत है, वो अपनी लीगल नॉलेज उसको देख के आगे बढ़ाते हो. ऐसा भी होता है कि कभी आपका केस 100% आपके हक में होता है और आपका केस डिसमिस हो जाता है. दैट इज अप टू योर लक, बिकॉज यू आर गिविंग यू 100%. योर क्लाइंट, जब आपके केस हक में एक ऑर्डर आता है, आपके इसको पता चलता है सीधे एक ले मैन को भी कि इस वकील ने कितनी मेहनत की है. इट शोज क्लियरली. किसी में एक ऐसा फॉल्ट होता है, एग्जाम्पल आप किसी कोई केस ले लेते हो और उसमें ऐसी चीज होती है जो आपको पता ही गहची ना. टेकिंग दैट केस ऑन हैंड, व्हाट इज द फन? वो आपके लीगल करियर को नीचे गिराता है. क्योंकि मैंने इतना देखा, सम पीपल आर लाइक आप न सोचाने हम तरीके ये संकारों. नो, दैट्स नॉट माई एथिक. My legal ethics are not allowing me to disobey. Yes. They are not, because since very beginning, I have been being doing ethical very, in that regard is a ethical, part to play. I mean, ethical advocacy. It's very important because once आप एक leadership में आ जाते हो, leadership is not always वो ना कि rule नहीं करना होता है हमेशा. आपको leader बनना है, you're taking a charge. No.
This is always about to take care of those who are in your charge. Yeah. Right? If I am leader to somebody, वो इतना comfortable होता है मेरे साथ कि मुझे पता होता है कि किस तरीके से डील करेगा, मुझे भी उसको भी समझ आता है इस तरीके से मुझे काम करना. Because I have been working under very much pressure in a senior. ऐसा था कि पहले 9 से लेके मैं सिर्फ 6 तक काम कर सकती हूँ, मतलब ऐसा होता था. But law is not that. My seniors have taught me. Law is not working 9 to 5 job नहीं है. But ये freedom मुझे मिली जब मैंने खुद का काम किया, क्योंकि मैं रात को भी काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ. Even after मैं किचन में बैठ के भी लैपटॉप हाथ में लेके मुझे पता होता है मुझे कहाँ पे काम करनी होती हूँ. Doing household chores मुझे फोन हाथ में होता है, मुझे पता है मुझे केस के बारे में ये करना. Even record my own voice. Okay. So ये important है. उस एस्पेक्ट को आप किस तरीके से ट्रांसपेरेंट रखते हो, और क्लाइंट को जब आप समझाते हो ना चीजें, वो एक सेटिस्फैक्शन में होता है कि हाँ जी मैं तो कर लूंगा, ये हो जाएगा. क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे हो ना आप, यहाँ पे सारे मामलात आपके वो कहते हैं तुम हालमस मंची आइम. तो अभी तक आपने लगभग कितने केसेस लड़े होंगे? You haven't counted? More than, yeah, not counted. मैंने कहा ना हम लोग अभी भी करते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है. मैंने कहा ना I have not gained it. I cannot say it. Somebody will say you are successful. No, I'm not. Nobody is successful. There are people I have seen, मेरे senior lawyers हैं जो successful. I can see them as my mentors. उन्होंने कितनी hardships, कितना कुछ knowledge के पेड़, जिसको बोलते हैं knowledge का समंदर होना. I'm trying to extract वो bit by bit, एक कतरा समेट के कि नहीं मुझे करना है. कुछ तो काउंट होगा, कितने जीते कितने हारे. हारने का तो मैं नहीं बोल सकती. There are very few, very less few. हारने की अगर बात करें, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो जो अगर हम बोलेंगे हारने की बात है कि उसमें कहीं ना कहीं से उनकी जीत होती है. ऐसा भी नहीं है कि केस हारा, क्योंकि फिर आगे स्टेप पे हमारा जैसे होता है कि आपने सिंगल बेंच में कोई केस हारा तो आप डबल बेंच में जाते. डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट भी मैं गई हूँ. मेरे कुछ केसेस ऐसे थे जिनको जस्टिस पहले स्टेज पे मिलना था, नहीं मिला, बट हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वी गॉट दैट. मैं तो अरफे में भी काम करती हूँ. अरफा मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अरफा तो चुन काम नहीं करा. सेकेंड ईद, आज ईद है. अर्ली इन द मॉर्निंग माई सीनियर कॉल मी, कहाँ हो सर? मेरा तो 2 केस मैंने कर लिए. तुम किधर हो? सर कोर्ट थी ना आज. सेकेंड ईद को भी मैं काम करती हूँ अभी भी, इवन बिकॉज वंस यू आर कमिटेड, आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है. यू वेरी ट्रांसपेरेंट. क्योंकि मैंने कहा ना पहले दिन से इस चीज में एक एक्साइटमेंट रह चुकी है कि मुझे करना है. एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी मच सिंस बिगिनिंग कि जिसमें आवाज नहीं है कि मैं उसकी आवाज बनूं. देयर आर वेरी लॉट ऑफ वुमेन जो इस वक्त भी मेरे कांटेक्ट में हैं. आधे घंटे 1 घंटा लीगल एडवाइस, शाम को 11 बजे भी कोई मुझे फोन करेगा, मैम ऐसे में अशियत की मजबूरी. ऑल्दो वी हैव बीन बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट कि हम लोग ऑनलाइन लीगल एडवाइस, लीगल डिसीजंस नहीं देते. बट ऐसे कुछ होते हैं सिचुएशंस जहां यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू गिविंग इट बिकॉज यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी. सो आप क्यों नहीं उस चीज को यूज करके आगे लोगों पर, बिकॉज वी आर बाउंड टू सोसाइटी. हर किसी की अपनी डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पेशेंट्स को देखे. वी आर ऑल्सो द डॉक्टर ऑफ सोसाइटी. Yes, that is true. अगर हम बोलेंगे, कोई बोलेगा दैट यू आर अ जूरिस डॉक्टर, यस आई एम, बिकॉज आई एम डॉक्टर. आई डू ट्रीट अ सोसाइटी. देयर आर फॉल्ट्स जो एक आम आदमी आगे नहीं पहुंचाता. वो बेचारा मेरे हाथ में पेपर्स लेके आता है कि मैं विश्वास जात के कारगर. What is the fun of being an advocate if I cannot give him legal advice? ये जरूरी नहीं है वो अंतिम गॉट्राज़ में तस्कीयत आदम में. No, that is true. So that's what I'm saying. This profession is all about. This is not about all about money. But since you've started this firm, how much do you charge for a case? That is something bigger. वो एक ऐसा question है जिसको शायद हम discuss ना ही करें. Surprise! उसको मैंने कहा ना, I know you would not answer it. Nobody answers this question. So I said that I have been blessed by Almighty Allah, Alhamdulillah, in every sense, in every. But do you at times compromise जब ऐसे लोग आते हैं? I do pro bono. That's I said that I do pro bono cases. Lot of pro bono cases. I've done it. There was a matter in which there were 150 clients in one matter. Almost 4-5 years मैंने pro bono में किया है.
5 साल में उसको, और हर दिन में, हर हेयरिंग में मैं चाहती थी कि इसको मैं प्रॉपर पूरी तरह से अपने टाइम पे कर लूँ. ऐसा नहीं कि इसमें मैंने पैसे नहीं लिए हैं, दिस इज अ प्रो बोनो मैटर सो आई एम नॉट डूइंग इट. नो, यू हैव टू. So this, because this is a women-led law firm, do you only deal with women-centric issues only, No, or many issues in no, general? other whatever issues, whether this is civil, it's a criminal. This is with regard to NDPS, with regard to the victims. This is an acid victim who is a civil, criminal, whatever cases. Even though I am working in tribunals as well, consumer forums, district courts, high courts, I travel a lot. Lovely. So कश्मीर में इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात किस चीज़ में ख़राब है? Because I always, मतलब आए दिन खबरें आती हैं, you know, you get too much of this data, how many divorces are there, sexual abuse, rape cases, many things. So ऐसा कोई केस तो आपके पास आया होगा, ऐसा इशू आया होगा जो ना that has been there with you, or that has somewhat defined your thinking towards a society. See, if we'll talk about divorce cases, मुझे लगता है कि ये एक सोशल इशू बन चुका है. समटाइम्स ऐसा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी प्रोटेक्शन रखी है वुमेन को कि आप उसको लाइटली नहीं ले सकते. इफ यू आर डूइंग इट, वुमेन हैज अ वॉइस, आप कर सकते हो. पहले भी ये था, बट पहले कानून नहीं था वैसा. अच्छा. शायद उनको रास्ता नहीं था, तब जबान नहीं थी. पहले था कि एक औरत को मारते भी थे ना, वो चलती थी. क्वेश्चन परवरगार छु बसाऊं. Compromise. They were compromising. Although हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, अगर ने एम ऐसा गार बसोमुत एम्स कहते आशा में कैसे युद्ध कर. बट उस चक्कर में वो औरतें खत्म हो चुकी है. Exactly. अगर हाल ही में हम देखें हम लोग, वो दरगाह का केस था. दैट गर्ल, जो वुमेन जिसने 2 बच्चों की माँ, अपने आप को आंगन में, उसने वो किसी के और के आंगन में अपने आप को जला दिया. 1 साल पहले की बात है, वो निगीन साइड का था को जो. देयर आर अदर केसेस एज वेल. यू विल फाइंड वुमेन जो अपने आप को लटका के मार देती है. कैसे? क्योंकि उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया. ऐसा नहीं कि आपको डिवोर्स लेना चाहिए, नो. ये हमारे एक चीज है कि किसी हद तक आपको बर्दाश्त करना जरूरी है. बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ वाइफ, हर चीज को टॉलरेट करना बहुत जरूरी है लाइफ में. एज अ गर्ल कितने चैलेंजेस हम लेती हैं. देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. मगर अगर आप हर चीज को जबान से खेलोगे तो मुझे नहीं लगता वो कामयाब हो जाएंगे. कहीं कहीं आपको चुप रहना बहुत जरूरी होता है. Although I was being always told by my family, "Tishine zor thi kuni, zaka chi mic lag zor tishi speaker already lag." Okay. Tishi speaker lag because I was bold. Let me quote my father. He says, Yeah. "Zanchi asan quotas na jara karun." हाँ, 100%. मतलब मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि people like, "Nina sachana quote, इच्छन bahats karon." Because once you have a strong voice, Yeah. being a person who is always having a bold voice, मैं normally बात भी करूँ तो वो बहस ही लगता होगा. मगर हर चीज को आपको कहीं ना कहीं चेंज करना होता है. एक टाइम पे आप एक होते हो, फिर जब आप वाइफ बनते हो, आप पहले तो आपको समझ में नहीं आता व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन आहिस्ता हर चीज को आपको कुछ चीजें इग्नोर भी करनी होती हैं. Yes. तो शायद उतने डिवोर्सेस नहीं होते हैं. मगर अगर हम डिवोर्स रेट्स की बात करें, आज वुमेन इस चीज को एक लग्जरी की तरह लेके चलती है. अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, आई हैव सीन वेरी क्लोजली इन केसेस कि जहाँ पे इनको लगता है शायद वन हसकोर अतल हो गया, खुदा रचन. ऐसा नहीं है कि कोई आदमी हाथ उठाए. ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक अबाउट इट, बट हर चीज को आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं बनाना है कि सस्ता डोमेस्टिक वायलेंस. एवरीथिंग इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, राइट. अगर हम एज अ वुमेन अपने आप पे नजर डालेंगे ना, मुझे लगता है वुमेन आर कॉजिंग मोर डोमेस्टिक वायलेंस देन मैन. बिकॉज आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई हैव सीन एवरी डे वेरी क्लोजली कि आज एक बंदे की कोर्ट मैरिज होता है, दूसरे दिन वो प्रोटेक्शन लेता है, 5-8 हफ्ते या 2 महीने बाद यही केस कोर्ट में आता है डिवोर्स के लिए. Okay. Okay. Just after 18 years, just after 19 years of getting married. ऐसा नहीं है पहले हमारे मजहब में कि आप अर्ली एज में शादी करो, ऐसा करो, बट एक ऐसे कल्चर में आप रहती हो जहां आपको समझना बहुत जरूरी है कि you're going to run a family.
You have to have those patience in you so that you can understand something. So that अभी देखो आप हर जगह आप एक चीज सुनोगे, कहीं ना किसी की औरत ने खुदकुशी कर ली, तब मैं साथ सुपर वॉट आप उस दिन वॉट उसने इतना बर्दाश्त कर चुका होता है कि तम सुना पर्सन सपोर्ट का उसको कोई नहीं होता पीछे, उसके पास एक ही ऑप्शन आता है सुशवातान सुना पांस मर दिवा पांस नार. अभी मुझे क्या लगता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द वे यू आर रेजिंग योर डॉटर्स, प्लीज रेज योर सन्स लाइक दैट. Yeah. Yes. That is true. हर टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि आना तु वुचुन कह आलिम नफर तम से करो अमिस कोर खानदर ये समझे अमिस. क्यों आलिम होना जरूरी है? एक माँ अपने बच्चे को वैसा शेप नहीं कर सकती. Why always a man is on back part की बस हैक न पाने वाइफ खतर कह करती, क्यों नहीं कर सकता वो? ये तो उसका इस्लाम दिखाता है ना, वो खतरा तो नहीं होता. तभी एक वुमेन अपने आप को डिसीजन के लिए होती है कि तमिश पाई मैं खतरे हेकने कहीं गात करित सस्टेली दे वहां सु कदम तुलान. मैंने बहुत से ऐसे केसेस, डिवोर्स केसेस डील किए हैं जहां मैं मोस्टली मैन के साइड से रह चुकी हूँ. मोस्टली मेरे केसेस ऐसे डिवोर्सेस के थे जहां मैं लॉयर एक मैं आदमी की थी. बट एक चीज है कि फीमेल्स में एक चीज मैंने देखी, पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है. देयर इज जीरो पेशेंस. यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट, आप कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो. बीइंग माई सेल्फ अ वुमेन, कुछ चीजें फिर जब आपको समझ आता है नहीं यार बेहतर है आप इस चीज पे चुप करो. यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एट वेरी अर्ली एज. जब एक माँ अपने बेटे को बड़ा करती है ना, उसका एक ही वर्ड होता है, तुम क्यों रोते हो लड़कियों की तरह. मारा चुन बदान क्या सा चुक जाना पढ़न का सैड पार्ट हमारे कश्मीर में ज्यादा होता है. अगर कोई मर्द एक औरत के लिए स्टैंड लेता है ना, एम जनान पर करा, नो, ये तो हमारा मजहब है. अगर हम कश्मीर को साइड में छोड़ो, कश्मीर कहाँ से आया? हमें तो पहले इस्लाम है, हम तो मुस्लिम है ना. पहले उस पे देखो हमारा मजहब क्या कहता है. क्यों डिवोर्स रेट्स हो रहे हैं? मेन डिवोर्स रेट्स किस चीज पे हो रहे हैं? देयर इज नो फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम योर हस्बैंड बिकॉज ऑफ दैट. एक वुमेन इज नॉट वर्किंग, अब उसको पति उसको पैसे भी नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट, सो go guess where she will go. There are harsh truth is there. Hey ना सशन कंशन माना नहीं. अरे तुम तो उसको पहले अपनी स्टेबिलिटी तो दे दो. Give her those things. There are so many women I am watching every day. मतलब इतने bold, इतने helpful towards society because उनका backbone उनका husband होता है, उनका backbone उनका father होता है. We need more men like that. No? Many more. मगर मैं अभी की बात करूंगी ना, आई एम लिटरली कि मैं हमारी माओं को दाद देती हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है विद द जनरेशन जिनको डिफरेंटली शेप किया गया है. अभी के बाद की एक चीज है कि वी हैव बीन टॉट बाय आवर पेरेंट्स की सख्ती का चवाना, सख्ती से जरूरी तो ले हर कह चीज अवेलेबल किए, तुम्हें जरूरी अपने आप के लिए खड़ा होना है. देयर वर टाइम्स जब मेरे डैड को बोलते थे ये कोर मोल सोन कोरन मोल क्या कह रहे कह दाइने. Alhamdulillah, Allah Ta'ala के फजल करम से we only are the 4 sisters who are on top rank. Lovely. मतलब ये चीज है. हर कोई चीज डिफरेंट तरीके से एक वुमेन को देखता है. एक लॉयर, हाँ हमेशा कपूर वकील, ऐसे होता है. फिर जब उसके आपके तरीके को देखते हैं, उनका डिफरेंट पहले डाउट्स होते हैं. हर चीज को अपने मैंने कहा ना, आपकी कुलीग्स आपके जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एट योर वर्क प्लेस, वो क्लोजली देख रहे होते हैं कि किस पार्ट पे गिरेगी और उधर ही पकड़ेंगे उसको. मतलब these are the things. ये चीजें होती हैं. और कश्मीर में मुझे जो लगता है, मेरे नजर से अगर देखें तो कुछ हद तक हमें आदमियों को शेप करने की बहुत जरूरत है. ऐसे नहीं है कि हर चीज आप औरत को देखेंगे, एम क्या लोग एम कोरी द्रामत क्या शुम्स लगित. अनडाउटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पर्दे में रहना है, आप अपने हदूद में काम करो, क्यों नहीं कर सकते हो. बट जब मैंने मैन इज देयर, आप देखो क्या हो रहा है हमारे कश्मीर में. हमारे कश्मीर में आदमी, बच्चे, लड़के, छोटे बड़े कहाँ जा रहे हैं, कैसे शेप हो रही है उनकी. माँ जो होती है ना,
आजकल की जनरेशन की सोचे चाह बदम बचस पान सोरे बता मैं सोरे वाले भी टॉय मांगते एक मैं दो दूं ये सोच But they मांगा don't आठ realize चीज you're ruining them. Yeah. अभी के ड्रग्स जो आ रहे हैं कहाँ से आए कैसे हुआ वो इस जनरेशन में क्यों ड्रग्स है क्योंकि आपने उनको फ्रीडम दी है हम मुझे लगता है व्हेन आई वाज अ किड मैं शुन बासान मैं आसान प्रश्न वारे मल कुन विज दहाया वो रवि दिसमत बाय गॉड इवन इन माय कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक मुझे तो मांगनी भी नहीं आती है ना पॉकेट मांगने भी नहीं आते दैट्स व्हाट आई एम सेइंग पॉकेट मनी ऐसा था कि यूनिवर्सिटी लेवल तक कि आपको एक्सप्लेन करना होता था ये 20 रुपए खर्च कहाँ पे हुए एक दफा मुझे याद है यूनिवर्सिटी से मैं पैदल आई हूँ घर लाइक फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी टू डाउनटाउन बिकॉज मेरा पॉकेट मनी खत्म हो गया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू आस्क टू समबडी आई डिड नॉट टोल्ड माई फैमिली कि मुझे खत्म हो गया था क्योंकि मैंने चिप्स का एक पैकेट लाया था आज आप देखो छोटे बच्चे 200 300 400 की नॉर्मल आइसक्रीम खाते हैं हाँ क्यों कैसे देते हो आप अपने बच्चों को इतने पैसे यू आर अलाउिंग ए लिटिल 2 years old kid to watch a phone क्या है इस फोन में you know what ads are there Yeah. They're giving them access to, they don't even know what. undoubtedly you're giving a screen time ठीक है आजकल नया जमाना है what is नया जमाना जब एक माँ खुद स्क्रॉल कर रही होती है बच्चा उसको देख रहा होता है ये कैश विचार शुद्ध विच Obviously, how can you question your kids when you're cannot on the wrong path? आपने अपने आप को चेंज करने की जरूरत है मैं अपने आप को बताऊंगी कि जब मुझे मेरा फोन बंद रहेगा तब मेरा बच्चा नहीं देखेगा we can't say it क्योंकि ये मालिस खसान है खसान एक समाज society is in the hand of a woman the way we are saying मारच खराब गुमित बट ये खराब किसने किया तो ये इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है डिवोर्सेस का जो इस वक्त कश्मीर में एक वो बहरान बोलते हैं जिसको कि हर साइड मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 90% काम डिवोर्सेस का है मेंटेनेंसेस का है दीज आर द थिंग्स आई हैव केसेस इन माय हैंड राइट नाउ जहाँ पे हर चीज 1 साल बाद शादी के 1.5 साल बाद शादी के डिवोर्स होता है क्योंकि ये एक ही चीज का नहीं है ना तो आदमी में बर्दाश्त है ना ही वुमेन में बर्दाश्त ये कमी रह चुकी है अलबत्ता एक चीज जरूरी है कि पहले औरत एजुकेटेड नहीं थी तो उसमें आवाज भी नहीं थी Yes. अभी की फीमेल जो है ना दे नो देयर राइट्स दे नो बर्दाश्त में और बर्दाश्त में क्या फर्क है वो बर्दाश्त करती हैं जो उनको बर्दाश्त करना चाहिए वो बर्दाश्त नहीं करती जो उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए पहले भी ये सेम था पहले औरतों पे ज्यादा मारपीट होती थी आज तो कुछ नहीं होता Yes. पहले तो बेचारी औरतों को ये काले मारपीट खून वसान लेकिन वो तब आवाज नहीं उनको पीछे से होता ही नहीं था कोई बैकग्राउंड में बात करे No silenced. parents are raising their daughters with that way that you are not somebody less than anyone. I am being a daughter. I have been told by my father कि तुम्हें पहले से इंडिपेंडेंट है तुम इंडिपेंडेंट रहो हम सबको कि तुम लोग इंडिपेंडेंट रहो क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम पे एक ऐसा अल्लाह ना करे कह कहाँ वक्त यवान सगस पानस पानस हैंडल हैकन करे Yes. वुमेन शुड पहले तो डाउनटाउन में वो काम होता था जब जॉब्स नहीं होते थे जब एक लड़की एजुकेटेड नहीं होती थी तुम्हारे साथ हम काम करान जो क्रोशे काम होता था Yeah, बाकी yeah. चीजें होती थी टू मेक देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन द रस का था लेडीज फिर एट टाइम्स ऐसा हुआ कि एजुकेशन इतनी रोल में आई वुमेन की कि एवरीबडी इज होल्डिंग अ गुड जॉब अ गुड पोजीशन व्हाट कैन अ मैन ऑफर टू अ वुमन आजकल तो हर कोई कमाती है Yeah. राइट अ मैन कैन ऑफर हिम कि वो उसको सुकून कैसे दे बिकॉज शी इज हैंडलिंग शी इज रेजिंग योर होल्ड फैमिली नाउ Yes. उस चीज का थोड़ा यहाँ पे बैलेंस नहीं रहा ना वहां से बर्दाश्त हो रहा है ना यहाँ से नोबडी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज Yes. नोबडी Yes, that is true. हर कोई अपने अपने ते वो बोलता है मैं कुछ हूँ अदरवाइज व्हाट आई हैव सीन वेरी क्लोजली कि एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती आदमियों को there are very few girls who are blessed the way I am being blessed Yeah. by a man. That is Strong- also a point. That's what I'm saying. Strong headed लोग बर्दाश्त नहीं होते आदमी को तो बिल्कुल जरा भी बर्दाश्त नहीं होती एक वुमेन कॉन्फिडेंट है शी इज होल्डिंग ए गुड पोजीशन मेरे से आगे क्यों है
ये भी एक रीजन है जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम्स होती है. That is true. That's what I said कि एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, एक आदमी के लिए भी, एक वुमेन के लिए भी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्ट. So ये जो आपकी लॉ फर्म है, ठीक है, do you believe it is making some difference somewhere down the line? I believe it because I am feeling difference in myself. I'm feeling that change because I'm feeling that change that जो एक 5-8 मेल लॉयर से होता होता केस मेरे पास आता है, और जब मैं उसको रिजल्ट देती हूँ वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है कि अभी तक की 4-5 मेल लॉयर्स के पास एक केस था, अल्टीमेटली वो मेरे पास आ गया. और उसके बाद जब उसको फ्रूटफुल इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो एक अलग लेवल का चेंज होता है कि नहीं, men are thinking कि women are more competent than a man because they know that she's confident, she's consistent towards hard work. Once you're very clear and transparent in front of your clients खुद समझते हैं. And there are some clients who are so much encouraging, they are giving you so much courage. मैडम करो से मैं भरोसे पे, मतलब ऐसा होता है कि वो अलग लेवल का एक बूस्ट देता है आप पे वो चीजें. और चेंजेस की बात करें, एज इफ आई सेड दैट कि मैं प्रो बोनो मैटर्स की बात करें, कुछ ऐसे डिवोर्स केसेस है या फिर कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे क्या बताऊं मैं कि गर्ल्स आर अटैक्ड बाय देयर फादर्स. Okay. हु इज द मोस्ट, वो कहते हैं ना प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रोटेक्टिव केयर होता है एक औरत का. देयर आर सो मच जो एक सोसाइटी के लिए आप कर सकते हो, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक सोसाइटी को वो चीज दे सकूं. वो एक इम्पॉर्टेंट है. वंस यू टेकिंग ए प्रो बोनो मैटर, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको उठाना है और आपको करना है, कहना सच सुनवाना करना तरीका. आई फील इट कि जितना दर्द मुझे प्रो बोनो मैटर ने दिया है ना कि मुझे ये करना है, जितना मुझे एफर्ट्स, जितना मुझे वो कंसिस्टेंसी प्रो बोनो मैटर ने, उतना मुझे पेड क्लाइंट ने नहीं दिया. I feel myself that this is my responsibility towards society. Yes. Everybody is holding a position. The way you are doing your job, वो कहते हैं ना कि अपने words को किस तरीके से आप society तक पहुंचाते हो. Everybody has their own society, the responsibility towards society. That's how I am doing. I'm helping myself the way who is working at me, I am working with somebody. तो एक culture बनता है, ये work culture बनता है. वे जो आपके क्लर्क्स होते हैं, जो आपके एसोसिएट्स होते हैं, तो एक उनके साथ जो आपका बॉन्ड बनता है ना, आपके वर्क में वैसी ही एक शेप आती है. और जब रिजल्ट आपके हाथ में आता है, आपको खुद समझ आता है कि नहीं जी, आई एम शेपिंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग. दैट इज ट्रू. एंड यू आर गिविंग टाइम टू द क्लाइंट. मुझे कोई रैंडम, बिलीव करोगे अगर मैं कभी कोई कैब ऐसी ले लेती हूँ, बिकॉज नॉर्मली आपकी कॉन्वर्जेशन से पता चलता है यू होल्डिंग समथिंग, तो वो पूछते हैं मैम आप लॉयर हो, मैं उससे के मसला, मैं 1 घंटा उसके साथ डिस्कस करूं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे ये भेज देना, मैं विदाउट फीस. ऐसा नहीं मैं बोलूँगी बिकॉज मैं न था वहां. नो, दिस इज माई ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी. अगर कोई फंसा है तो मैं क्यों हूँ इस प्रोफेशन में. आई एम इन दिस प्रोफेशन, अनडाउटली योर चार्ज. Lawyers are there, they charge for their words. Yeah. But always, this is not about money. That is true. This is about something which is beyond money. Yes, that is the case. So before we sum up this episode, I had a lovely chat. Tell me something. I have a question for you. Okay. Do you think lawyers are liars? No. Actually, lawyers are not liars. We're very good storytellers. But within the limits of law. Okay. Within the limits of law. I can't say somebody is saying अंधा कानून. Because हमारे जो एक सिस्टम में ऐसा बन गया है ना कि मूवीज भी ऐसी बन गई, तारीख पे तारीख. आपने कभी बोला है तारीख पे तारीख? It's not about that. मिलते हैं तारीख पे तारीख. See, there is a system. आप ये नहीं कह सकते. हमारे पास एक केस आता है. A lawyer is not a liar. We are storytellers, but within the framework of law. Whatever the client is telling you, this is not about कि client आपका सही है, आपका सही गलत है. But if you know that your client is right or wrong, but you are putting that forward within the limits of law, where your law is everything is a solution, right?
you have a case in your hand and you handle it within the course of law. किसी के लिए वो सही होता है, किसी के लिए वो गलत हो जाता है. हर किसी को वो कहते हैं ना कि इंसाफ ना इंसाफी तथाच हर कुन जायज हर कुन कस मंज. सो कोई बोलता है कि हम हसा नहीं मैं पोस यह शोना मैं नहीं ना, बट यू नीड टू जस्टिफाई इट विद योर लॉज. If you cannot justify it, that means you're also wrong. Yeah. You have to justify that within the course of law. You can't say हाँ जी मैं सही हूँ. कैसे सबूत है? Let's stick to that. Yeah. So let's move to our lawful rapid fire round. One skill law school didn't teach you, but entrepreneurship did. People management. People management. How to manage people. Okay, lovely. The biggest myth about women lawyers in Kashmir. That they are not committed, not Really? resilient. Ah, I guess women are more committed and resilient. okay. They're consistent. Okay. The toughest part of running your own law firm. This is like not toughest part, I guess very excited part for me. If this was not tough to run my own law firm because I was like, if there is no associate with me, I'm the only one woman army. I'll do it myself. Achha. ठीक. Because although there were times when time was not allowing me to be out of the house, कि जब आपको बाहर अंधेरा हो जाता है, you cannot be in your office. आप एक woman हो, you are in limits. You have to be at home at a place. तो एक ऐसी चीज ये चैलेंजिंग होता है एक लॉ फर्म. बट जब मेरी खुद की लॉ फर्म स्टार्ट हो गई, दिस वाज कितने वो एक सॉफ्ट सा चेंज आया मेरी लाइफ में एंड इट शेप्ड माय होल करियर, completely shaped my whole career. And that's how my management skills giving me that backbone कि okay fine इसको इस तरीके से शिफ्ट करना है. I feel कि अगर मेरा बैकग्राउंड मैनेजमेंट नहीं होता शायद मेरे लिए सख्त हो जाती चीजें. ठीक ठीक. Litigation or legal strategy your strongest suit? Legal strategy. Legal strategy. Yeah. Okay. One book, quote, or idea that has shaped your leadership style. As I've already said, that leadership is not about taking a charge. Mm-hmm. It's about taking care of those who are in your charge. Okay, lovely. That is very important. Lovely, lovely. So thank you so much, Ruqayya ji. It was आप lovely. आई, And thank आपने you so हमसे much for बातचीत having की. me. It was a lovely conversation and a lot of good insights gained. Thank you so much. Thank you very much. Thank you once again. ये थी हमारी रुकैया जी. इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा. And it looks like she just doesn't raise her voice. She raises the bar over here. And एक चीज़ जो इन्होंने अपनी conversation में कही वो ये थी कि आप शर्माइए मत, चुप मत रहिए. आज शुनु सो ज़मान तो ये बिहू को ठिसमस तो छप करत बिहू. बोलने की बहुत ज़रूरत है. आप बेइज्जती हो रही है, आपको जेल रहे हैं, कोई भी सकती हो. बोलिए, चुप मत रहिए. And obviously we have people like Ruqayya ji giving voice to voiceless. And one more thing she said before we concluded this episode, and that was leadership is not about taking charge. It's about taking care of those who are under your charge. That's all for today. Keep watching Kashmir Life.